Hello everyone and good morning. We have already taken the chapter Structure of Atom. अभी आपका टेस्ट है उस चैप्टर पे, तो चलो हम इस चैप्टर को एक बार करते हैं रिवाइज। मैंने आपको जो भी डीपीपी प्रोवाइड किया है, आई मीन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो उसमें से जो एमसीक्यू मैंने आपको दिए हैं हम यहाँ पे वो सॉल्व करेंगे। ओके, so that you can understand properly and revise all the important concepts of chemistry, I mean for this chapter, इसका नाम है structure of atom. ओके, तो मेरे पास उसका हार्ड कॉपी तो अवेलेबल नहीं है, but I have the soft copy in the mobile, so I will read the questions from the DPP one by one and we will solve it again. So the first question given over here is electrons were discovered by. So you know that electrons were discovered by scientist J.J. Thomson. Option number B is answer. You know that he used the cathode ray discharge tube for it. The mass of an atom is determined by number of. Yes, mass of an atom, I told you, the whole mass of an atom is supposed to be concentrated at its center, which contain the nucleus. Nucleus contain protons and the neutrons. So the mass of the atom is determined by the number of neutrons and protons. You know that electrons का जो mass होता है, it is almost negligible mass. Chadwick got the Nobel Prize for the discovery of. Yes, James Chadwick, he discovered the neutrons, and you know that he done the bombardment of the alpha particles, and thereby by doing the experiments he discovered the neutrons. Neutrons, they are chargeless particles. The fixed circular paths around the nucleus are called as. Yes, as per the Bohr's theory, you know that electron revolves around the nucleus in the circular paths and they are called as orbits. Mass number is equal to, yes, mass number का जो होता है symbol, वो symbol होता है A, and you know that A is equal to number of protons plus number of neutrons. You know that number of protons के लिए symbol होता है Z, you know that atomic number. So here A is equal to Z plus N. So neutron number N is determined by A minus Z, where N is nothing but the neutron number and A is nothing but the mass number. Z is atomic number. So in this way we can say here mass number is nothing but the sum of protons and neutrons. Any p orbital can accommodate up to. Yes, अगर हम बात करते हैं p orbital की, तो you know that आपको पता है L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2 and L is equal to 3. L is equal to 0, L का मतलब होता है यहाँ पे azimuthal quantum number. L is equal to 0 मतलब होता है s ऑर्बिटल, L is equal to 1 का मतलब होता है p ऑर्बिटल, L equal to 2 का मतलब होता है d ऑर्बिटल and L equal to 3 का मतलब होता है f ऑर्बिटल. ओके, I told you the shape of, शेप से पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि इनके अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो आपको पता है s ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D contain maximum 10 electrons and F contain maximum 14 electrons. I told you the meaning of this S, P, D, F also. S is nothing but S for sharp, P for principal, D for diffuse and F for fundamental. और एक बात, S ऑर्बिटल का जो होता है शेप, ये होता है स्फेरिकल इन नेचर, p ऑर्बिटल्स आर डम्बेल शेप, d orbitals are double dumbbell
double, dumbbell and f orbitals, they are complicated. तो ये होता है regarding the s, p, d and f orbitals. s orbital की अगर हम बात करते हैं तो that it has only one orientation. So s orbital के लिए हम लोग लिखते हैं एक ही बॉक्स. Now this box diagrams are there. They are only for the representation purpose. P की अगर हम बात करेंगे तो P के लिए होते हैं 3 boxes. I told you because it has 3 orientations, px, py and pz. D की अगर हम बात करते हैं तो D के होते हैं 5 टाइप्स, आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. I told you if their lobes are in between the axis, then there are 3 types of d orbitals, dxy, dyz, dzx. और ये जो होते हैं, if the lobes of the d orbitals are along the axis, then there are these 2 types. ठीक है, इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो f के होते हैं 7 टाइप्स. ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So in this way we can say here f orbital are of 7 types. अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्या दिया है? Any p orbital can accommodate any p orbital. देखो यहाँ पे p अगर हम बात करते हैं p orbital की, तो यहाँ पे क्या होते हैं px, py and pz. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, किसी भी एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए स्पिन होता है अपवर्ड, दूसरे का होगा डाउनवर्ड. फिर अगर हम बात करते हैं p की, तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, सेकंड विल कम हियर, थर्ड विल कम हियर, फोर्थ विल कम हियर, fifth will come here and sixth will come here. So they have totally 6 electron overall, and you know that they are with the opposite spin here. But now any p orbital can accommodate up to any, मतलब px की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, and they are also in the opposite spin. So ऑप्शन नंबर यहाँ पे आना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स with the opposite spin. So question number 6 का आंसर आएगा D. The principal quantum number of an atom related to the, yes, principal quantum number, I told you it represents orbit number or shell number. So options are size of the orbital, spin angular momentum, orbital angular momentum and orientation of the orbital in the space. यस, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज ऑप्शन नंबर एस ए, साइज ऑफ द, वहां पे होना चाहिए ऑर्बिट एक्चुअली. ठीक है, कोई बात नहीं. बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, यस, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ, यस आपको पता है, he explained the spectrum of hydrogen only. या फिर we can say that it explain the model with the atom containing only 1 electron. A proton has approximately the same mass as, yes, a neutron, an alpha particle, a beta particle, an electron. आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स, दे आर नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ हेलियम न्यूक्लियस. तो ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है यहाँ पे 4. आपको पता है अगर x होता है एनी एलिमेंट तो z होता है इसका एटॉमिक नंबर और a होता है इसका मास नंबर. तो इस तरीके से अगर हमने इसको रिप्रेजेंट किया तो अल्फा पार्टिकल्स दे आर नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ, यस, हेलियम न्यूक्लियाई. तो इनका ऑब्वियसली आपको पता है प्रोटॉन क्या होता है? यस, प्रोटॉन H H H, एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, आई एम सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास नंबर हो गए इनके. तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे आएगा 1 2 3
फर्स्ट वन जो है आइसोटोप. स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स. Different atoms of the same elements having same atomic number but different mass numbers, they are called as isotopes. देखिए यहाँ पे तीनों के एटॉमिक नंबर्स तो सेम हैं लेकिन इनके एटॉमिक मास नंबर्स अलग अलग है. तो यहाँ पे ये है इनके एटॉमिक नंबर्स जो कि सेम है और ये है इनके एटॉमिक मास नंबर्स जो कि अलग अलग है. पहला वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरा वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम और तीसरा वाला जो है आइसोटोप हाइड्रोजन का इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम. प्रोटॉन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. सो इन दिस वे वी कैन से हियर. अभी जो होते हैं प्रोटॉन्स तो उनका जो मास होगा, दिस इज द मास ऑफ द मास सेम एज द मास ऑफ न्यूट्रॉन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है बिल्कुल निग्लिजिबल. क्या होते हैं बीटा पार्टिकल्स? ये तो जाना हमने अल्फा पार्टिकल के बारे में. बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं पता है आपको? दे आर नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये है इलेक्ट्रॉन का सिंबल. बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बीटा पार्टिकल मतलब ये तो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. इसीलिए हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट falls to lower energy level, energy is. देखिए, I told you in the postulates of Bohr's theory, when an atom absorbs, when an electron absorbs energy, then it will go to excited state. It will jump from lower energy level to higher energy level. लेकिन अगर कोई एटम एनर्जी को करता है emit, at that time its energy is released. Electron can jump from lower energy level to higher energy level by absorption of energy, and electron can jump from higher to lower energy level by emission of energy. Emission मतलब होता है बाहर फेंकना. ठीक है. तो when an electron and an atom in an excited state falls to lower energy level, energy is released. That's why total number of electrons in principal energy shell can be given by the formula 2n square. You know that I told you here K, L, M and N. N is equal to 1, N is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. So ये है शेल, ये है इनके ऑर्बिट नंबर्स और ये है थर्ड कॉलम में आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर. 2 in bracket 1 square, 2 in bracket 2 square, 2 in bracket 3 square, 2 in bracket 4 square. क्या आएगा इधर? 2 into 1 that is equal to 2 electrons. 2 into 4 that is equal to 8 electrons. 2 into 9 18 electrons. 2 into 16 32 electrons are there. So here we can say here maximum number of electrons in any shell can be given by the formula 2n square. An atom of element G contain 19 protons and 20 neutrons. G है उस एटम का सिंबल. तो इसमें है 19 protons and 19 अगर प्रोटॉन है तो नीचे लिखेंगे हम लोग. We have to write here below 19 as atomic number और ये है मास नंबर होना चाहिए. फिर इसका आपको पता है हम जो ऊपर लिखते हैं अगर x होता है एनी एलिमेंट तो a होता है इसका मास नंबर जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम. नीचे तो होता है z जो होता है प्रोटॉन्स ओनली. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यस प्रोटॉन्स आर 19 and neutrons are 20. So 20 plus 19 it is equal to 39.
सो यहां पे आना चाहिए इधर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो क्योंकि यहां पे ए होता है मास नंबर जो कि होता है सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो होता है यहां पे जेड एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हम लिखते हैं नीचे। देन तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी। रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज यस न्यूक्लियस। तो पहले तो यहां पे न्यूक्लियस का निर्माण हुआ था ना, फिर बाद में यहां पे फिर आया प्रोटॉन। एनी पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अप टू यस, ये तो हो गया था क्वेश्चन। I will say here 2 electrons with the opposite spin. Rutherford scattering experiment is related to the size of size of the nucleus. The maximum number of electrons in S, P and D subshells are, S में होते हैं 2, P में होते हैं 6 और D में कितने होते हैं 10. Which one of the following sets of quantum numbers represent एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट? आपको दिए हैं यहां पे 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स। वेट, आई नीड टू क्लीन दिस बोर्ड। नोट डाउन दिस वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो आपको यहां पे दिया है एन, एल, एम एंड एस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको 3, 2, -2 एंड 1/2। ऑप्शन बी में दिया है आपको 4, 0, 0, 1/2। ऑप्शन नंबर सी है 3, 2, -3, 1/2। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको 5, 3, 0, -1/2। ऑप्शन नंबर सी में प्लस दिया है 1/2, ठीक है। 3, 2, -2 यस, 4, 0, 0, 1/2, 3, 2, -3 एंड 1/2, 5, 3, 0, -1/2। ओके, चलो अब हम चेक करते हैं हम लोग। देखिए आपको पता है व्हेन n इज इक्वल टू 3 देन L कैन हैव यस n नंबर ऑफ वैल्यूज। तो L की यहां पे कितनी वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू आएंगी। और जो उनका रेंज होता है ना, रेंज वो होता है 0 से लेकर n-1 तक। तो यहां पे L की वैल्यू क्या होंगी? L कैन हैव 3 वैल्यूज। कौन कौन सी? फर्स्ट वैल्यू इज 0, सेकेंड वैल्यू इज 1 एंड द थर्ड वैल्यू इज n-1, मतलब क्या आएगा? 2। तो ये है 3 वैल्यूज इसके। कौन कौन से वैल्यू यहाँ पे? 0, 1, 2, ये है L के वैल्यूज। रिमेंबर, ये है L के वैल्यूज। अभी L जब होता है, नाउ सी M की जो यहां पे वैल्यूज होंगी, द वैल्यूज ऑफ M हैज ट्वाइस L प्लस 1 वैल्यूज। M की अगर हम बात करते हैं तो उसकी होती है ट्वाइस L प्लस 1 वैल्यूज। यस, तो ये होती है M की वैल्यूज ट्वाइस L प्लस 1। तो अगर यहां पे L का वैल्यू 2 है तो यहां पे आएगा 2 इन ब्रैकेट 2 + 1, क्योंकि यहां पे L का वैल्यू क्या बताया है? 2 बताया है। So M will have the value here 5, ठीक है। एंड नाउ सी S की अगर हम बात करते हैं, अगर M की है 5 वैल्यूज, ओके, एंड नाउ फॉर दिस द वैल्यू ऑफ S आई विल टेल यू क्या आएगा वैल्यू यहां पे S का। M का वैल्यू यहां पे बताया है -2। हाउ इट इज पॉसिबल? एक्चुअली द वैल्यू ऑफ M जो होता है, ये तो उसके 5 वैल्यू होते हैं और उनका जो होता है रेंज, वो जो रेंज होगा, यू नो दैट
माइनस एल थ्रू 0 2 प्लस एल। तो पहला वैल्यू कौन सा आएगा यहां पे, वो वैल्यू आएगा -2 -1, क्योंकि यहां पे एल का वैल्यू कितना है 2 है, इसीलिए -2 -1 0 +1 एंड +2। सो दीज आर द 5 वैल्यूज आर देयर। और अगर हम बात करते हैं -2 के लिए, मतलब ये पहला ही आएगा ना ऑर्बिटल, तो इसके लिए +1/2 इज पॉसिबल, तो पहला वाला तो चलेगा, मतलब इट्स राइट। देखते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन क्या आएगा हमारा। n = 4 बोला है आपको, सो हियर n = 4, सो l कैन हैव yes 4 वैल्यूज, l कैन हैव 4 वैल्यूज। और वो जो 4 वैल्यूज आपको पता है, वैसे भी क्या है वैल्यूज, वो 0 से लेकर n-1 तक। सो यहाँ पे l के जो वैल्यूज आएंगे वो आएंगे 0 1 2 एंड 3। ओके, अभी ये बता रहे हैं कि l का वैल्यू 0 है। आई टोल्ड यू, जब l का वैल्यू होता है 0 तो m का वैल्यू हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपको पता है कि ऑब्वियसली ये तो 4s ही होगा, और इसका 1/2 तो पॉसिबल है, मतलब सेकंड वाला भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि 4s की अगर हम बात करते तो आएगा एक बॉक्स, तो उसमें अगर आता है इलेक्ट्रॉन तो इट है अपवर्ड स्पिन, तो उसका वैल्यू आ सकता है +1/2। चेक करते हैं अभी हमारा सी ऑप्शन क्या आता है। n = 3 आएगा, तो l के कितने वैल्यूज आएंगे, l कैन हैव n नंबर ऑफ वैल्यूज, 3 वैल्यूज आएंगे इसके, और वो भी होंगे 0 1 एंड 2, ठीक है। अभी बाद में ये है कि यहां पे l का वैल्यू क्या दिया है, l का वैल्यू दिया है 2। देखिए अभी गौर से देखिए, अभी यहां पे क्या दिया है, m हैज विच वैल्यू हियर, इधर जो मेंशन किया है l का वैल्यू क्या दिया है आपको, 2 दिया है। सो इफ l = 2 देन m कैन हैव ट्वाइस l + 1 वैल्यू, मतलब 2 इन ब्रैकेट 2 + 1 मतलब आएंगे 5 वैल्यूज। और वो 5 वैल्यू क्या होते हैं, तो ये मैंने बताया था आपको, -l थ्रू 0 2 + l, मतलब क्या आएगा यहां पे, देखो ये तो है नंबर ऑफ वैल्यूज, और इनका जो होता है रेंज, वो रेंज होता है -l थ्रू 0 2 + l। पहला वैल्यू आएगा -2, दूसरा वैल्यू आएगा -1, तीसरा वैल्यू आएगा 0, फिर आएगा +1, फिर आएगा +2। ये है वो 5 वैल्यूज। आई मीन देयर आर 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल। ये जितने भी होते हैं ओरिएंटेशंस, मतलब उतने ही होते बॉक्स। अभी यहां पे बता रहे हैं कि m का वैल्यू यहां पे -3 है। आप मुझे बताइए यहां पे आया है क्या -3 कहीं पे, नो। सो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। चलो हम लोग ऑप्शन डी भी यहां पे ट्राई करके देखते हैं। अगर n का वैल्यू है 5, n = 5, देन l कैन हैव n नंबर ऑफ वैल्यूज, और वो जो वैल्यूज है वो होते हैं 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जो उसका रेंज है वो क्या होता है 0 से लेकर n-1 तक। यहां पे क्या होता है 0 से लेकर0 से लेकर n-1 तक। यहां पे n का वैल्यू कितना है 5 है, तो पहला वैल्यू होगा 0, और जो लास्ट का वैल्यू है वो है n-1, मतलब 5 - 1 4, तो ये है वो वैल्यूज। अभी यहां पे क्या दिया है आगे, चलो यहां पे दिया है इन्होंने l का वैल्यू है 3। ओके, सो इफ l हैज वैल्यू इक्वल टू 3, देन m कैन हैव विच वैल्यूज, आई टोल्ड यू दिस आर द वैल्यूज। क्या वैल्यूज के, 2l + 1, मतलब 2 इन ब्रैकेट 3 + 1 मतलब है 7 वैल्यूज। ये 7 वैल्यूज है, लेकिन वैल्यू कौन से है वो आएंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ये आएंगे वो 7 वैल्यूज। तो इसमें से ये वैल्यू 0 दिया है m के लिए, और वो पॉसिबल है, मतलब d वाला भी पॉसिबल है, लेकिन c वाला कैसे पॉसिबल है आप मुझे बताओ। अगर हमने ऐसे चेक किया इस तरीके से, तो ये c वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग आएगा। That's why the answer is equal to C here. Okay.
again I need time to rub all this. Please wait for some time. ओके, सो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। क्वांटम नंबर टॉपिक को एक बार वापस थोड़ा रिवाइज कर लो, देख लो प्रॉपरली क्या है, और जितना भी हमारा थ्योरी का पार्ट हुआ है, एवरीथिंग विच आई टॉट यू विद इन द लेक्चर्स, दैट यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. ओके, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम इज, आपको पता है यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 18. Chromium is having atomic number 24, so it has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है, बाद में यहाँ पे कौन सा आएगा 4s1 and 3d5. 2 plus 2 is 4 plus 6 is 10 plus 2 is 12 plus 6 is 18 plus 1 is 19 and plus 5 is equal to 24. आपको याद होगा हमने लिया था एनामोलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर. तो यहाँ पे 3d5 जो होता है ये होता है हाफ फील. यू नो दैट some of the students they still not understand how to write the shell wise electronic configuration. तो ये होता है फर्स्ट शेल यहाँ पे, और ये होता है सेकंड शेल. 2 दिखा ना इसके सामने, तो ये है फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड शेल ये पूरा है जिसमें है 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड शेल में देखो वैसे देखा जाए तो 3s 3p के बाद में पहले 4s फिल होगा, फिर यहाँ पे 3d फिल होगा. लेकिन अगर हमको लिखना है शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो यहाँ पे 6 + 2 is 8 + 5 is 13, एंड फिर फोर्थ शेल जो दिया है इसमें एक ही आएगा इलेक्ट्रॉन. सो 8 + 2 is 10 + 1 is 11 plus 13 is equal to 24. अभी यहाँ पे ये दिया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. आपको पता है कि यहाँ पे है हाफ फील डी ऑर्बिटल, एंड यू नो दैट हाफ फील is much more stable. That's why chromium shows such an anomalous electronic configuration. तो यहाँ पे ये 3d5 और 4s. अभी आपको पता है यहाँ तक जो हम लोग लिखते हैं ये है वो आर्गॉन का हो गया 18 कंप्लीट. तो फिर बाद में आना चाहिए 4s1 and 3d5, या फिर 3d5 लिखो. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ग्राउंड स्टेट में बोला है, ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में जब तक वो इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम रहेगा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो रहेगा ग्राउंड स्टेट में. व्हेन इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी इट विल गो टू एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड. तो 18 का है ऑप्शन नंबर ए. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल. देखिए फिलहाल तो ये हमने शायद हमको है नहीं, फिर भी मैं आपको बोलता हूं इसका फॉर्मूला क्या है. द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इट इज नथिंग बट इन द स्क्वायर रूट ऑफ L इन ब्रैकेट L + 1 डिवाइड बाय H अपॉन ट्वाइस पाई. ये है यहाँ पे उसका फॉर्मूला, जहां पे आपको पता है कि L क्या है, वेयर L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर. सो स्क्वायर रूट ऑफ L इन ब्रैकेट L + 1 वेयर L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर. H is Planck's constant and pi, you know that what is pi. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो S आपको पता है L is equal to 0 for S, L is equal to 1 for P, L is equal to 2 for D, L is equal to 3 for F. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं S की तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज को, तो 0 + 1 और ये H अपॉन ट्वाइस पाई. लेकिन देखिए ना, अगर हमने 0 से उसको मल्टीप्लाई किया तो पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा
0. Hence option number B is right answer. Question number 20. The number of nodal planes in 2px orbital. ये क्या होते हैं नोडल प्लेन? आपको याद होगा हमने देखा है इस टॉपिक को. तो यहाँ पे कितने आएंगे नोडल प्लेन 2 इन अ px ऑर्बिटल? यस, px ओरिएंट्स अलोंग द x एक्सिस. आपको याद होगा, मैं आपको बताऊंगा वो कैसा है डायग्राम उसका. एक सेकेंड. याद होगा आपको ये डायग्राम? यस. So in this diagram there is only one nodal plane and I think that ये diagram हमने निकाला था. So in case of any p orbital there is a presence of only one here nodal plane. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर यस. ऑप्शन नंबर ए. The number of radial nodal nodes of 3s and 3p are respectively. 3s की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? Yes. Radial nodes of 3s and 3p. I just think that this answer is 3s के लिए तो यहाँ पे होना चाहिए 0. ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. बट स्टिल आई एम कंफ्यूज, सो आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ऑन व्हाट्सएप. क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या आता है 22 का. हर्ट्ज रूल इज हेल्पफुल. क्या है हर्ट्ज रूल? व्हेन सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम टाइप एंड सेम एनर्जीज आर अवेलेबल, देन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल ऑल द ऑर्बिटल्स सिंगली विद द पैरेलल स्पिन and then pairing takes place. मतलब सोचिए ना, अगर हमको लिखने का है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, उसका है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p yes 4. तो 1s के लिए आएगा एक बॉक्स, 2s के लिए आएगा एक और 2p के लिए आएंगे यहाँ पे 3. तो 1s2 2s2 2px 2py and 2pz 1 2 1 2 1 2 3 4. ये हमने यहाँ पे लिखा है. क्या है इसमें? नाउ यू कैन सी हियर, जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे पास थे 4 इलेक्ट्रॉन्स और 3 थे ऑर्बिटल्स अवेलेबल. तो पहले हमने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया और फिर पेयरिंग होना यहाँ पे शुरू हुआ. When several orbitals of same type and same energies are available, then the electrons first fill all the orbitals singly with the parallel spin and then pairing takes place. So Hertz rule जो है, it is helpful to write the stable electronic configuration, to find the number of unpaired electrons, to find the multiplicity. आपको पता है हर्ट्ज रूल को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा. हर्ट्ज रूल इज अप्लाइड मेनली फॉर यस एनी ऑर्बिटल, degenerate orbital, suborbitals only and orbits only. I will say here any orbital. Okay. With violation of both Pauli's and Hertz rule is observed in. आपको जो दिए हैं बॉक्सेस देखिए, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये पहला वाला ए जो है वो सही लग रहा है, जो दूसरा वाला दिया है इसमें वो गलत है. ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो क्या होता है इन केस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ए इज राइट,
यू नो दैट क्या होता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ऑल द क्वांटम नंबर्स. ये है उसके लिए है. अभी यहाँ पे ये वॉल्यूशन दोनों का बता रहा है, पॉलिश और हर्ट्ज का. तो इसमें क्या आएगा, हर्ट्ज पहला वाला तो सही है, दूसरा वाले में हर्ट्ज रूल गलत है, तीसरा वाला इज ऑल्सो राइट, एंड जो दिया है डी वाला ऑप्शन, दैट डी इज रॉन्ग, क्योंकि डी में दोनों के दोनों यहाँ पे रॉन्ग आएंगे वैल्यूज. यू नो दैट ये जो है इट्स अ वायलेशन ऑफ बोथ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एज वेल एज हर्ट्ज रूल. तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम is given here 22 and 11 contains, ये दिया है आपको सोडियम का एटम, इसके लिए है 22 एटॉमिक मास नंबर और 11 है इसका एटॉमिक नंबर. इसमें है 11 प्रोटॉन्स, तो 22 प्रोटॉन तो गलत है, 11 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट्स राइट. यू नो दैट पहला वाला ऑप्शन तो गलत इसलिए है क्योंकि 11 है इसमें प्रोटॉन्स और 11 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स. जो दूसरा दिया है वो है 11 न्यूट्रॉन्स. यू नो दैट न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू a माइनस z, 22 माइनस 11 इज इक्वल टू 11. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट. 22 न्यूट्रॉन इज रॉन्ग एंड डी इज नन ऑफ दिस बोला है, तो वो भी रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब इसमें 11 न्यूट्रॉन है और ये बात बिल्कुल सही है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट ऑफ बेरिलियम इज, बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं, यस, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम. बेरिलियम का होता है 4 और एटॉमिक मास नंबर उसका होता है 9. तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू, यस, तो 9a माइनस z होता है ना फॉर्मूला इसका, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. यह आएगा इसका आंसर. Question number 27. No two electrons in an atom will have all the 4 quantum numbers same. This statement is known as Pauli's exclusion principle. The quantum numbers for the outer electrons of an atom are given by. Yes, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो लिथियम की बात करते हैं तो आएगा यहाँ पे 3, फॉर बेरिलियम यहाँ पे आता है 4, फॉर हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा 1 एंड फॉर बोरॉन यहाँ पे आएगा 3. सो हियर 1s2 and 2s1, 1s2 and 2s2, 1s1 and here will be 1s2 and लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बोरॉन का होता है 5, सॉरी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, हेलियम, हाँ राइट, बोरॉन इज 5. सो 1s2, 2s2 and 2p1. नाउ सी n इज, अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो n इज इक्वल टू 2 बोला है, मतलब हमें चाहिए सेकंड शेल, तो ये तीनों में है सेकंड शेल, ये तो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 0 बोला है. l 0 बोला है मतलब वो होना चाहिए s होना चाहिए, तो ये एक्चुअली एक तो पहला आएगा या फिर दूसरा आएगा. ये दिया है 2p में, तो ये नहीं चलेगा. m इज इक्वल टू 0, चलो तो यहाँ पे, और इसका देखो दिया है s का वैल्यू दिया है और वो है +1/2. देखो अगर हम बात करते हैं, सी नाउ द क्वांटम नंबर्स फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो 2s1 है इसके लिए आएगा अपवर्ड स्पिन, और यहाँ पे ये जो 2s2 जो बोला है इसका आएगा अपवर्ड, तो इसका दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो रहेगा डाउनवर्ड. ये अपवर्ड वाले को रहेगा वैल्यू s का वैल्यू रहेगा +1/2 और ये जो है डाउनवर्ड इसका वैल्यू रहेगा -1/2. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिथियम A विल बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे s का वैल्यू बोला है +1/2. ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला है आउटर मोस्ट, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा. ओके, फॉर गिवन प्रिंसिपल लेवल n इज इक्वल टू 4,
the energy of its subshells is of the order, obviously you know that S सबसे कम होगा, then P, then D and then F. Option number B is right answer. Electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2 corresponds to, अगर हम इनको काउंट करेंगे तो आता है 2 + 2 is 4 + 6 is 10 + 2 12 and 12 + 2 is 14. ये आता है सिलिकॉन का. ऑप्शन नंबर A is answer. Just count the number of electrons and then you can get the corresponding atom. When the azimuthal quantum number L is equal to 1, the shape of orbital will be L is equal to, देखो L is equal to 1 बोला है मतलब P बोला है, कौन सा होता है इसका शेप? डम्बेल शेप. Which of the following sets of quantum numbers is not possible? ठीक है, तो ये देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने सॉल्व किया था इसको, इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस एंड आई थिंक दैट इट्स आंसर इज लगता है आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार. वेट, आई विल रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. सी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 32. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, थर्ड शेल है और l इज इक्वल टू 0 है. और मैंने आपको बोला था कि जब भी l इज इक्वल टू 0 होता है तो m भी 0 होता है. तो यहाँ पे L इक्वल टू 0 तो दिया है लेकिन M दिया है -1, इसलिए ऑप्शन नंबर A ही रॉन्ग है. ओके, बिकॉज व्हेन L इज इक्वल टू 0 देन M इज आल्सो इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर A इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर है 33. इन अ सेट ऑफ degenerate orbitals the electrons distribute themselves to retain similar spins as far as possible. This statement is attributed to. सिमिलर स्पिन मतलब अगर आप देखेंगे तो ये होता है हर्ट्ज रूल. यू नो दैट, जैसे मैंने बोला था आपको कि वही यहाँ पे दिया है कि सिमिलर स्पिन मतलब ऑल दिस द इलेक्ट्रॉन्स दे आर हैविंग सेम स्पिन, अपवर्ड स्पिन, और वी कैन से पैरेलल स्पिन. तो ये आएगा हर्ट्ज रूल के लिए, ये आएगा. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं कह सकते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही सही रहेगा. न्यूट्रॉन्स का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन. जैसे मैंने आपको दिया था वही आपको यहाँ पे ट्राई करना है. टेक द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1. तो देखना है क्या आता है वैल्यू यहाँ पे. इफ L इज इक्वल टू 1. इससे पहले मैं ख़त्म करता हूँ ये क्वेश्चंस, फिर हम उसको देखेंगे. 35 को हम लोग देखते हैं पहले. 36, 37 को हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस है. तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस and later on that protons were discovered, but main discovery was nucleus. The configuration 1s2, 2s2, 2p5, 3s2 shows that. देखिए यहाँ पे जो दिया है 1s2, 2s2, 2p5 और 3s1 दिया है यहाँ पे, shows that there is देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं हमको 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3p यहाँ पे 2p दिए हैं यहाँ पे 5. मतलब यहाँ पे एक मतलब था इसका कि 2p में से एक इलेक्ट्रॉन गया है और 3s में से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है. ठीक है. So we can say it as 2 plus 2 is 4 plus 5 is 9 plus 1 is 10. Now there is the presence of 10 electrons here.
तो ये अगर हम लोग लिखते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो उसका होता है 9, एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p, yes, ये आएगा 5, तो ये फ्लोरीन का नहीं आएगा। देन इफ यू से हियर एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन, तो यस इट विल बी करेक्ट, बिकॉज क्योंकि अगर ये होता है एक्साइटेड स्टेट में आता है F माइनस हो जाएगा, फिर वो नियॉन की अगर हम बात करते हैं तो नियॉन में होते हैं 2p6 तक यहाँ पे आएंगे। एंड इफ यू से हियर एक्साइटेड स्टेट ऑफ O2 माइनस आयन, O2 माइनस, आगे तो बात करते हैं ऑक्सीजन की, यस For this, I think the right option will be fluorine excited state में अगर आता है तो वो just a second, we'll check it, please wait. ओके तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 1s2, 2s2, 2p5 एंड 3s1 बोला है, तो 2 + 2 is 4 + 5 is 9 and then there is a 3s1, so here an electron is extra there, तो ग्राउंड स्टेट का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं, वो तो रॉन्ग ही है, तो ये है इट्स नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी हियर, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा आ रहा है और वो 3s में गया है इसलिए। तो फिर भी आई विल चेक एंड टेल यू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज अ डम्बेल शेप। यस यू नो दैट p orbitals they are dumbbell shape and the ground state electronic configuration of chromium is here। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की तो आपको पता है इसका क्या आता है, यू नो दैट आर्गॉन इज देयर एंड मेरे ख्याल से हमने लिखा था ये क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हुआ है। In the ground state of chromium there is the presence of here 3d5 and 4s1, option number A is right। Question number 40 is there, an electron has principal quantum number 3, the number of its subshells and orbitals would be। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, मतलब थर्ड शेल हुआ यहाँ पे, थर्ड शेल में n = 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ सबशेल्स यू नो दैट 3s, 3p एंड 3d, ये है 3 टाइप के सबशेल्स, तो यहाँ पे 3 आएगा। और s के लिए होता है, सो यहाँ पे है सबशेल्स तो आएंगे यहाँ पे 3। s के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे है एक ऑर्बिटल, p के है 3 ऑर्बिटल्स और d के है यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 and 9, ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर। अभी यहाँ पे जो बता रहे हैं द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों वैल्यू दिए कहाँ हैं, सो देयर शुड बी 4 वैल्यूज शुड बी गिवन, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द आंसर फॉर दिस केस। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये करने का है, सॉल्व करने का है, एंड जो भी दिया है थ्योरेटिकल पार्ट है इंक्लूडिंग दैट यू नो दैट डी ब्रोगली थ्योरी या फिर ड्यूअल नेचर, ये सब आपको पढ़ना है। थ्योरी का पार्ट जितना भी हो सके आप लोग पढ़ लो, और स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। तो you know that in this way I will tell you, you have to write the answers, okay। So I will say do the study carefully, do watch all the previous lectures properly, in case of any doubt you can ask me, and I will say all the best for your test। See you in the next lecture।